Hello. Hi. Hi, everyone. So, John. Hi, John. Can you hear me, John? Okay. Okay. So, let me share my screen and we can start this webinar. Basically, today's webinar Recording in progress. Hello, Utkarsh. Can you hear me? Varun, your voice was lost for. Now it's coming. Yeah, now it's coming. Okay, okay. I was saying that I'm sharing my screen. Let Hmm. me share my screen and start with this meeting, webinar. So, are you able to view my screen? Yes, Varun, you can see your screen. Okay. Okay, are you able to view my screen, right? Yes, Introduction yes, to Varun. blockchain. Okay, so welcome everyone in our blockchain webinar. The agenda of this blockchain webinar to provide you the understanding about the blockchain technology, and the core content for this blockchain webinar will be the decentralized finance. And after the webinar, you will be able to understand like how the uh, DeFi, like decentralized finance word works. Before it, let me give introduction uh, about our company, DigiChain Pioneers. So, DigiChain Pioneers is a upcoming blockchain startup who is working on blockchain technology to empower everyone whosoever wants to become whosoever is want to understand the blockchain world, and whosoever wants to use the blockchain framework for empowering their businesses, their career. So we are working force for them, and we have twofold mission. Like we are working on blockchain education, where we are providing training and consulting around blockchain technologies. And on the other world, we are working on real world blockchain use cases like real world asset tokenization and supply chain, blockchain in supply chain domain, or digital identity, or digital certificate verification in blockchain. So we are working on both all these areas. So if I talk about myself Varun Gupta, I am having 17 years of IT industry experience, and I worked in various IT companies. And along with this, if we talk about my credentials, like I worked in product management and business management and the blockchain domain. I did certifications in blockchain and product management as well. So this is the brief intro about me. If we talk about the DigiChain Pioneers team, so Utkarsh is working with us as a main lead developer. He's like we are together. We are developing blockchain products and blockchain services. Along with we are providing blockchain education and training. And Bipasha is working with us on a digital marketing part. And recently, we had started just 2 3 months back, and recently we were chosen by IIM Lucknow Enterprise Incubation Center, and we are incubated with IIM Lucknow Enterprise Incubation Center, and they have
recognized us as a upcoming blockchain startup, and now we are collaborated and like working with them, and they will mentor us for upcoming opportunities in blockchain world. So this is one of the achievement we have achieved so far in very less time, and we are committed and dedicated to achieve many more these success in future. So, like, let me just give you the brief, like why understand and learning blockchain is required, because blockchain is a future. Blockchain can produce great career opportunities. Blockchain is being used in cryptocurrencies, and various smart contracts are written by in blockchain. So, like blockchain, why understand and learn blockchain is important, because blockchain is providing so many opportunities, and blockchain is has the power to change the upcoming future. And now, like, I am stopping here, and Utkarsh will take it further from here. He will explain blockchain in a nutshell, and after that we will move to the concept of decentralized finance. Okay, I am stopping here. Okay, so thank you, Varun, and hello everyone. So we will start with our webinar. So let me set the context what we are going to understand in this 1 hour webinar. So our main area, or we can say the main focus of this webinar, is to understand DeFi. So what is DeFi and how it works, and what is the difference between DeFi, why we need DeFi, and what was some of the limitations of the centralized finance system. तो उन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से समझते हुए कोशिश करेंगे आपको एडवांस तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाए। और अभी जो ये वर्ड आप सुन रहे हो डीफाई, आफ्टर दिस वेबिनार you will not only understand that what is DeFi, but you will also able to explain others that कि DeFi है क्या, and जो Sorry, it is Utkarsh, your voice is sounding bit low. It will be better if you can increase the volume. give me 1 second. Is it fine now, Varun? Not, it is sounding a bit low. Like that power is not coming into your voice. Like sounding bit low. Hello. Now is it correct, Varun? Hello. Yes, it is coming. For me, it's sounding bit low. If not, you are not able to take it like more louder from here, you can continue with this. But if you can make it a bit louder, then it will be more helpful. So I'm I think Varun has some issue with the microphone. I think. No issues. You are able. You can continue in this. Okay. Okay, so the our topic is today mainly focused on the DeFi. So what is the DeFi and what is the decentralized finance? In this whole webinar, you will be able to understand and able to explain to the others also कि ये DeFi है क्या. So before we proceed to the our main topic DeFi, so as the DeFi is based on this blockchain technology, और हर किसी ने अपने लाइफ में मतलब एक बार ब्लॉकचेन के बारे में तो सुना ही होगा, ब्लॉकचेन बिटकॉइन ये क्या होता है। और इफ यू वांट टू गेट अ मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द ब्लॉकचेन, और क्योंकि इस पे भी डेडिकेटेड हमने कुछ वेबिनार्स किए हैं, तो ऑन योर आवर यूट्यूब चैनल यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस वेयर वी विल गो much deeper into the all the concepts of the blockchain. But in this webinar, we will focus mainly on the DeFi part. So let's start. I'm sharing my screen. We will give you the little bit glimpse of what is this blockchain technology, and then we will jump to our main topic, which is DeFi. So let's start with blockchain. So what is blockchain? Blockchain क्या है? पहले ब्लॉकचेन को समझने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पहले समझनी होंगी। पहली है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा है नोड, और थर्ड है लेजर। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? तो डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले हम ये जानते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। तो सेंट्रलाइजेशन इज अ थिंग वेयर अ डिसीजन मेकिंग पावर और द अथॉरिटी इज सैचुरेटेड, और we can say it is dependent on a single entity, a single point. For example, let's suppose आपका बैंक है। अब
जो भी डिसीजंस होते हैं, मेन डिसीजंस होते हैं, लाइक आपका अकाउंट फ्रीज करना है, आपके अकाउंट को अप्रूव करना है, मनी ट्रांसफर करना है, पेपर वर्क रिलेटेड, ये सारे जो भी डिसीजन मेकिंग या जो भी ऑपरेशंस है, ये एक सिंगल एंटिटी जो कि आपका बैंक है उस पर डिपेंडेंट है. सो दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? इट इज अपोजिट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, दैट the power or the decision making authority is not saturated or dependent on a single entity. Either it is decentralized and dependent on multiple, we can say multiple entities. So this is decentralization. And the second thing which you need to understand is ledger. So ledger is nothing, it is just a, we can say transactions, it is just a record of the transaction. You can take as a simple example of a shop near your house, who maintains how many items he has sold, how many items he has sold, and what are the other, like how many people have taken borrowed money from him. So he maintains record of that. So this is just a ledger. And digital ledger is thing that which is maintained on a digital platform, or we can say maintained online. So आपने यहाँ पे तीन टॉपिक्स, तीन टर्मिनोलॉजीज अभी समझ ली, डिसेंट्रलाइजेशन, लेजर और एक नोड बच रहा है. नोड, नोड को आप समझ सकते हो, इट इज जस्ट अ कनेक्शन और इट इज जस्ट अ मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. ठीक है, तो ये होते हैं नोड्स. अब आपने डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गया. अब आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या. सो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वे. तो ये है क्या ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या करता है, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड है, अब ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, लाइक मैंने वरुण को 10 रुपए दिए, वरुण ने मुझे 20 रुपए भेजे, आपने अपने दोस्त को 10 रुपए भेजे, तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस है, इनके रिकॉर्ड को एक डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर करना मल्टीपल नोड्स पे, यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो अब आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन क्या है. यहाँ पे आप अगर आप इस एग्जांपल को अच्छे से आप समझ गए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या आप बहुत इजीली समझ जाओगे. लेट्स सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 people. सो देयर आर 5 friends who maintain the record of how much money they have borrowed from each other. सो 5 दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉपी मेंटेन की हुई है जिसमें वो ये रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं कि किसने किससे कितने पैसे उधार लिए हैं, किसको कितने पैसे देने हैं. ये सारे रिकॉर्ड्स वो एक कॉपी में लिखते हैं, वो 5 दोस्त. अब आप 5 दोस्तों को आप समझो एक एक नोड है, वो 5 दोस्त एक एक नोड है, और जो कॉपी है वो लेजर है जिसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं. और ये पूरा जो ये नेटवर्क है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. अब लेट सपोज वो जो कॉपी है वो किसी एक दोस्त के पास ही रहती है. तो अब आप अपने से ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो कि अगर वो कॉपी बस एक दोस्त के पास अगर होगी तो उससे क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेजेस यही है कि वो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, और वो उसमें कुछ भी मतलब इट इज नॉट वेरी सिक्योर. वो उसमें कुछ भी चेंजेस करेगा किसी को नहीं पता चलेंगे, वो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, वो उसमें कुछ भी मलिशियस एक्टिविटीज करके कुछ भी अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा. सो यहाँ पे आपने देखा कि सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है. अगर कॉपी सिर्फ एक दोस्त के पास है तो कितनी सारी चैलेंजेस या कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस पूरे नेटवर्क में हो रही है. अब नाउ फ्लिप द केस एंड थिंक कि एक दोस्त के पास वो कॉपी ना हो करके वो ट्रांजेक्शन की कॉपी 5 लोगों के पास है, तो इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. अब अगर कोई भी एक दोस्त, उन 5 दोस्तों में से एक भी दोस्त जो कि एक नोड है, अगर उसमें कुछ भी मॉडिफाई या कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो जो बाकी 4 दोस्त हैं उनको पता चल जाएगा. इसी तरह इसी टेक्नोलॉजी, इसी जो पूरा फंडामेंटल या पूरा जो एग्जांपल है, यही सिंपल में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जहां पे डिसेंट्रलाइज वे में किसी भी ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है नोड्स पे. और इस तरह क्या इंश्योर हो सके, इम्यूटेबिलिटी इंश्योर हो सकती है कि कोई भी बंदा कुछ भी आके इस पे चेंज नहीं कर सकता है. हर किसी के पास उसकी कॉपी है तो पूरे तरह से ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल परमिशनलेस है. यहाँ पे आपको किसी भी एक सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंडेंट, या क्या कह सकते हैं कि किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई पावर सैचुरेट नहीं होती है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज होता है. तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. सो दिस इज सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप किसी भी बिगिनर को या किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या. सो नाउ वी आर क्लियर विद decentralization, ledger, what is the blockchain technology, what is the problem of centralization, and what is immutability and other things. So this is whole picture of the blockchain technology. अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशन है. आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, आपने इथेरियम के बारे में सुना होगा. इन सब पे बहुत ही हमने एक डीप डाउन सेशंस पहले भी किए हुए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोस को रेफर कर सकते हो जहाँ पे हम और डीप डाउन गए हैं कि बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और क्या एप्लीकेशंस हैं, या फिर ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन कैसे होता है. मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. बट जैसा कि ये हमारा वेबिनार मोर फोकस्ड है डीफाई की तरफ, तो इस पे हम डायरेक्ट डीफाई पे जंप करेंगे.
और ये हमारे बहुत मतलब हमने बहुत डीप डाउन हम बाकी हमारे सेशंस में गए हैं। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप उन यूट्यूब वीडियोस को एक बार जरूर देखें। हर एक टॉपिक, ये वेब 1 वेब 2 वेब 3 क्या है, हर एक टॉपिक्स लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, नोड्स होते कैसे हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म, लाइक इफ यू आर अ वेब 3 एंथुजियास्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है। इस टॉपिक को भी हमने बहुत ही थॉरली और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे यूट्यूब वीडियो में, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड देयर आर मल्टीपल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। वॉलेट्स क्या होते हैं, गैस फीस क्या होती है। अच्छा, हमने वॉलेट्स का सिर्फ हार्डवेयर मतलब हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट और यहाँ तक कि हमने मेटामास्क लाइव सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया हुआ है, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इस बार जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है हमारे इस वेबिनार का, वो है डीफाई। तो लेट्स जंप टू द डीफाई पार्ट कि ये डीफाई आखिर में है क्या। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डीफाई, लेट्स ब्रेक इट इनटू द टू पार्ट्स। डीफाई, सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो फाइनेंस से आप अभी क्या समझते हो? लाइक जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, लाइक बैंक जिन पे ऑपरेट करता है, लाइक लेंडिंग, बोरोइंग, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, और भी ऐसे मल्टीपल, मतलब ये तो कुछ जस्ट एग्जांपल्स हैं, बट देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स इन विच कम अंडर द दिस फाइनेंशियल टर्म। सो अभी जो हमने पूरा ब्लॉकचेन का आपने ओवरऑल पिक्चर समझा, डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ब्रेकडाउन से पहले भी एक टॉपिक हम पहले समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये बहुत ही आप इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बैंक के एग्जांपल से। ठीक है, सेंट्रलाइज फाइनेंस अब हमारे पास है, लेट्स सपोज एक बैंक है आपका। अब बैंक में जो भी डिसीजंस होते हैं, लाइक किसी का अकाउंट फ्रीज करना है, या किसी को पेपर वर्क रिलेटेड कुछ वर्क है, या कुछ भी अप्रूव डिसअप्रूव या जो भी मल्टीपल लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स है, उसके वो जो डिसीजन है या फिर वो उसमें कौन मतलब किसके हाथों में होता है, वो इट इज जस्ट लिमिटेड और इट इज जस्ट सेंट्रलाइज टू द बैंक। बैंक ही रिस्पॉन्सिबल है, वो 24/7 वो ऑपरेट भी नहीं करता है। लाइक आपका मनी बैंक में है, बट आप जब बैंक क्लोज होता है आप बैंक नहीं जा सकते, अपने पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम है। वी कैन नॉट से दैट बैंक इज परमिशनलेस, देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, देयर इज वी कैन से ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो हमने 5 दोस्तों के एग्जाम्पल से समझा, उस तरह की प्रॉब्लम भी बैंक के साथ है कि सेंट्रलाइजेशन है। और किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट किसी को बैंक को भी ऐसा क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर दे सकती है कि इसका अकाउंट फ्रीज कर दो या ये चीजें कर दो। तो वी कैन से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन दिस सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। सो इस पूरी प्रॉब्लम को कैसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सेंट्रलाइज फाइनेंस में, परमिशन जो है, ट्रस्ट रिलेटेड जो भी कुछ चीजें हैं, और बहुत सारे मल्टीपल, हम इस पे आगे और अभी डीप डाउन जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। इन सारे प्रॉब्लम्स को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, उसका मतलब यही है कि इस फाइनेंस को आप बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कर दो। लाइक किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी, किसी भी बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट ना हो, हर किसी के लिए ये परमिशन लेस बिल्कुल एक्सेस हो। तो ये होता है I, डिसेंट्रलाइज I फाइनेंस। want to add here, like this is going to be the future. Like this has huge, immense potential. Like everyone, like we are so bullish, and finance is moving from centralized to decentralized ecosystem very fast, because Utkarsh already had explained that whatever the problems and limitations exist with centralized ecosystem are being overcome with the decentralized ecosystem. And think about the finance, like transparency, speed, immutability, or like whatever the challenges, like authority, whatever the challenges exist with centralized ecosystem, like bank, like you are not able to open the account if bank is not giving the permission, if you do not have the documents, if you do not have your Aadhaar, if you do not have your IDs, then you cannot open an account in the banks, and you cannot become the part of the financial ecosystem, because it depends on your KYC, it depends on your ID, your passport, your documentation. And if you do not have these details, you cannot be part of the financial ecosystem in centralized world. But in Correct. decentralized world, like it is not required that you should have your identity, you should have your documentation, Aadhaar, or any of the identity proof. Then only you can become the part of the decentralization. It is open for everyone, open for all. So think about the people who are not currently part of the banking and financial ecosystem, just because of they do not have the identity. And like if you are willing to take loan, if you do not have any credit history,
Suppose you do not taken the loan in the past, you do not have any credit history. On the basis of someone can judge you whether you will be able to repay the loans or not. Then you are not entitled to get the loans from the centralized ecosystem, banks, NBFCs, because those had the rules and regulations. But if you are a part of a decentralized ecosystem, then you can you can work on the lending part, borrowing part, and staking. So there are various use cases and various freedom is available on decentralized ecosystem. Correct. So at this point there must be multiple question in your mind कि there is no paperwork, यहाँ पे बहुत चीजें permissionless है, कोई भी पेपर वर्क केवाईसी ये सारी चीजें चीजें तो सिक्योरिटी के लिए होती है, बट यहाँ पे तो कुछ है नहीं. फिर भी why this is a billion dollar industry, why people are trusting decentralized finance and why people are moving to this decentralized finance. There can be multiple question in your mind कि कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर होती है, जहाँ पे फंड रिलेटेड इतनी सारी चीजें हो रही है, कैसे यहाँ पे ये चीजें होती हैं. सो दिस इज सिंपली एग्जीक्यूटेड with the help of smart contracts. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में गए हैं. लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ग्लिम्स ऑफ व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दे आर जस्ट अ सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड्स written on the blockchain technology. Blockchain specifically mainly on the Ethereum and other technologies. So जैसे कि initial days of the blockchain, Bitcoin was just the application of the blockchain. But as the later much advancements came into this field and Ethereum was one of the part of that. जहाँ पे आप क्या कर सकते थे, पूरे के पूरे एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे. तो उनकी ही मदद से जो भी ट्रस्ट है वो कोड के थ्रू ही कोड किया जाता है. मतलब आप समझो कि हियर यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी सेंट्रल अथॉरिटी, यू आर नॉट जस्ट ट्रस्टिंग योर बैंक और यू आर नॉट जस्ट ट्रस्टिंग समवन की हाँ ठीक है मैं आपके फंड्स को सेफ रखूंगा. यू आर ट्रस्टिंग कोड. सो यू आर ट्रस्टिंग द प्रोटोकॉल, यू आर ट्रस्टिंग द कोड हियर विच इज रिटन इन सम लैंग्वेजेस. सो यहाँ सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट वे में प्रेजेंट होता है, आप उसको देख सकते हो, आप परमिशनलेस वे में उसको एक्सेस कर सकते हो. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते. आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या यार मल्टीपल यू डोंट जस्ट रिलेट इट टू अ क्रिप्टो. लाइक डिसेंट्रलाइज इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो, it is a parallel finance system running with this centralized finance also. So it is not just a crypto, तो इट इज अ पैरेलल फाइनेंस सिस्टम वी कैन से. यहाँ पे हर वो चीजें जो आप सेंट्रलाइज बैंक में होती हैं लाइक लेंडिंग, बोरोइंग और इंटरेस्ट अर्न करना, वो सारी चीजें आप डिसेंट्रलाइज वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू कर सकते हो. तो दिस इज कंप्लीट पिक्चर ऑफ द DeFi. नाउ दिस डेफिनेशन विल मेक मोर सेंस टू यू. लाइक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस refer to a financial system built on the blockchain technology that operates without traditional intermediaries like bank or financial institutions. So this is the whole picture of the DeFi. Now these are some of the characteristic of the decentralized finance. This is first, it is decentralized, like there is no central authority that governs or control over this system. And in this webinar we will see one very interesting example where a powerful country tried to restrict some of the countries to don't access to the system, but as this blockchain technology is completely transparent and completely permissionless, they were unable to ban it. We will see how that happened as well. So this is first of all decentralized. It is transparent. All the transactions that are recorded, they are recorded to the blockchain, and most and all the public blockchains are completely public. You can view every transaction. You can view everything on the chain. So this is the second characteristic. Third, it is permissionless. Like anyone with the internet access, anyone can access this. It is trustless. You, as we have already discussed, that कि किसी भी central authority पे नहीं dependent है, किसी भी बैंक पे नहीं dependent है. This is completely decentralized and accessible to everyone. Second and the last important characteristic is global. Like it is accessible from the anywhere of the world. Like अगर आप अभी ऐसे आप सोचो कि अगर आपको इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजना है, तो it is a very tedious task to achieve this from the centralized finance ecosystem. It is very difficult. There are a lot of paperwork. There are a lot of we can say steps to achieve this. But with the help of the decentralized finance, you can achieve this very easily without any intermediaries. Like आप ऐसा सोच भी सकते हो कि बिना किसी बैंक या बिना किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की मदद से आप मनी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर पा रहे हो, वो भी बिना वेरी सिक्योर, इन अ वेरी वी कैन से वेरी फास्ट, in a very and fast as well as very secure way. So this is very fascinating as well as very interesting कि ऐसा हो कैसे रहा है. इसके ये कैसे ऐसा हो सकता है कि आप इस कंट्री से उस कंट्री बिना किसी बैंक के पैसा भेज पा रहे हो. So this is achieved with the help of this blockchain technology, and everyone must understand
हो सकता है ये जो अभी सारी बातें हम आपको बता रहे हैं डिसेंट्रलाइज या ट्रांसपेरेंट, ये चीजें और सेंस तब बनाएंगी जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो कोर एसेंस है या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कोर फंडामेंटल्स है उसको आप और अच्छे से समझ के इस टॉपिक पे अगर आप आएंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे, देन दिस थिंग विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू एंड यू विल बी फैसिनेटेड। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि बैंक के बिना भी आप पैसे भेज सकते हो। ऐसा तो कभी आप किसी और से ऐसे बताओगे जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है कि यू डोंट नीड बैंक्स टू सेंड मनी, दिस कैन बी डन in a decentralized way with the help of blockchain technology, he will be surprised. And when you will explain him the whole picture कि ये ऐसे ऐसे होता है, then he will be also very much surprised, और वो भी ऐसे बोलेंगे कि भाई मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। So this is the power of this blockchain technology, and DeFi is one of the most important application of it, and it has lots of job opportunities in this sector of DeFi. But there are some challenges as well, like मैंने जैसे आपको बताया कि आप पूरे ट्रेडिशनल सिस्टम को आप क्या कहते हैं रिप्लेस कर रहे हो डिसेंट्रलाइज सिस्टम से, तो इट इज नॉट दैट इजी। आपको वो सारे जो मैथमेटिक्स होते हैं जो बैंक जिस एल्गोरिदम पे वर्क करता है उसको आपको परफेक्टली कोड करना होता है और परफेक्टली ऑप्टिमाइज वे में कोड करके एक प्रोटोकॉल डेवलप करना होता है। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट इज रिस्की, बिकॉज any flaw in your code, or we can say any there are some security vulnerabilities in your code, it can lead to loss of the funds. So as that it is directly रिलेटेड विद द फंड्स, अगर आपके कोड में कुछ भी ऐसा कुछ फॉल्ट है या आपके कोड में कुछ भी ऐसे कुछ फॉल्टी आपने कुछ लाइन लिख दी है जिसको हैकर्स यूज करके उसको क्या कहते हैं आपके प्रोटोकॉल को हैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो लॉस होता है वो सिर्फ डेटा का नहीं होता है, हियर डायरेक्ट फंड्स आर लिंक्ड, सो डायरेक्ट फंड्स का लॉस होता है। इसीलिए जो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा है, सिक्योरिटी जॉब ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है, बट दे आर नीड स्किल डेवलपर्स इन दिस फील्ड, बिकॉज जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड फंड है, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पे एस्पेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और वी कैन से बहुत सिक्योर कोड लिखना पड़ता है कि कोई भी हैक आपके कोड में कोई भी वल्नरेबिलिटी या कोई भी ऐसी फॉल्टी कोड ना हो जिसकी वजह से हैकर्स को यूज करके आपके फंड्स को ड्रेन कर ले या फिर आपके प्रोटोकॉल को डाउन कर दे। सो दिस इज one of the most important aspect which you need to consider if you are trying to code in the DeFi system. सो ये है कुछ और सेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि ट्रेडिशनल सिस्टम वही सब सिस्टम है जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं, लाइक बैंक्स हो गए, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो दिस इज द सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, और इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सेंट्रलाइज है, कोई एक सेंट्रल एंटिटी होती है लाइक बैंक्स और इंस्टीट्यूशन जो इसको कंट्रोल करती है, जो भी ऑपरेशन इस पे हो रहे होते हैं, पेपर वर्क रिलेटेड या अप्रूवल डिसअप्रूवल फ्रीजिंग रिलेटेड, सब कुछ एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू गवर्न होता है। सेकंड इज दिस प्लेटफॉर्म होल्ड कंट्रोल ऑफ योर फंड्स। अच्छा, आप बैंक के पास आपका जो पैसा होता है, अब आपके फंड्स का कंट्रोल तो बैंक के पास ही होता है। दिस इज नॉट दिस ये ऐसा सेंट्रल डिसेंट्रलाइज ये भी नहीं होता है लाइक यू आर द मैनेजर और यू आर द ओनर ऑफ योर ओन फंड, द नो अदर एंटिटी और वी कैन से नो अदर इंस्टीट्यूशन टेक कंट्रोल्स ऑफ योर फंड, एंड इट इज रेगुलेटेड लाइक सेंट्रल अथॉरिटी। वही बात फिर से आ जाएगी कि सेंट्रल अथॉरिटीज इसको रेगुलेट करती हैं, जो भी रूल्स होने, इंटरेस्ट 8% होगा कि 9% होगा, या लोन किसको देना है, क्या क्राइटेरिया, जैसा वरुण ने बताया कि कुछ क्राइटेरियाज होंगे, आपका लोन पास होगा नहीं होगा, वो सारी जो रेगुलेशंस हो रहे हैं वो भी सब कुछ सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू ही होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली भी होता है क्योंकि इसका जो इंटरफेस है, कस्टमर सपोर्ट वगैरह सब कुछ ईजी है क्योंकि बैंक आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में बस ये हो जाता है कि आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज वे में सब कुछ हो रहा है। तो यू आर द ओनर और वी कैन से यू आर द कस्टोडियन ऑफ योर फंड्स, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फंड्स एज वेल, so you must be very careful while accessing all these platforms of the DeFi system. So ये यहाँ पे है लाइक अगर आपका फंड्स में अगर कुछ भी ऐसे हेरा फेरी होती है इन सेंट्रलाइज सिस्टम, यू कैन डायरेक्टली connect with the support system, you can complain to multiple platforms. This does not happen in the decentralized finance as no one is the correct owner, as it is not centralized, आप किसी को reach out नहीं कर सकते हो। So this is one of the main point you should consider. So these are some of the application of the DeFi, like क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, lending and borrowing. So ये अभी आगे क्या है ये सब हम देखेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने ट्रेडिंग या बहुत सारी चीजों में आप ग्रो के बारे में, आप ऐसे और भी जो जेरोधा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, आपने सुना होगा, ये पूरे के पूरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी डिसेंट्रलाइज वे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिल्ड हो चुके हैं, और दे आर नॉट जस्ट बिल्ड, दे आर हेवीली यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब, एंड एज आई अर्लियर टोल्ड ऑल्सो, दिस इज $1 billion इंडस्ट्री। सो people are moving to this decentralized system, people are trusting this decentralized system, and people are also earning from this decentralized system. There are multiple system like decentralized exchange like Uniswap, Aave, PancakeSwap. There are multiple application or decentralized exchange which are built on the blockchain based on this DeFi application. So
this and also one of the most important point I want to introduce here is stable coin. आप लोगों ने यूएसडीटी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, यूएसडीटी डाई। तो ये सब क्या होते हैं ना, जैसे क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो हाईली वोलेटाइल होती हैं। हाईली वोलेटाइल, व्हाट आई मीन बाय हाईली वोलेटाइल इज इनका जो प्राइस अभी है वो कुछ कल कुछ और हो जाता है, फिर कुछ वो कल तो क्या मतलब कुछ टाइम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ऐसी नीड मतलब फील हुई डेवलपर्स या इस इकोसिस्टम में कि कुछ ऐसा भी कुछ टोकन्स या ऐसी भी कुछ एंटिटी होनी चाहिए जो इतनी हाईली वोलेटाइल ना हो। क्यों हाईली वोलेटाइल ना हो? क्योंकि जो पर्सन या जो भी हमारे यूजर्स हैं उनका इस डीफाई एप्लीकेशन पे ट्रस्ट जो है और बिल्ड हो पाए, लाइक वो इन चीजों पे और ट्रस्ट कर पाए। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी आज आपने आज कुछ खरीदा, कल उसकी वैल्यू कुछ भी वोलेटाइल है, कल को बढ़ सकती है, कल को बहुत घट भी सकती है। तो इतने हाई वोलेटाइल एसेट पे किसी को ट्रस्ट करना उतना ईजी नहीं हो सकता है। बट अगर वो ऑन द अदर हैंड थोड़ी स्टेबल है, उसकी प्राइस इतनी हाईली वोलेटाइल नहीं है, ऐसा अगर कुछ है तो उस पर लोगों का ट्रस्ट हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड एक स्टेबल कॉइन एक टर्म है जो इंट्रोड्यूस किया गया है डीफाई में। ये क्या होते हैं? ये कुछ टोकन्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड एंटिटी से बैक होते हैं, लाइक दिस यूएसडीटी, इट इज बैक्ड बाय द रियल डॉलर। सो इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू $1 ही हमेशा रहती है। आज भी $1 है, कल भी $1 रहेगी, और आने वाले 1-2 महीने में ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $1 के इक्वल ही रहती है। इसीलिए जो अब इसका भी एप्लीकेशन क्या है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देयर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक वेनेजुएला एंड मैनी कंट्री, क्यूबा, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन 100% भी एप्लीकेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है। लेट सपोज आपने एक आलू खरीदा आज 100 रुपए का, कल को उसका प्राइस 200 हो सकता है। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि किसी को नहीं पता कि भाई मेरी करेंसी की वैल्यू आजकल क्या होने वाली है, कुछ नहीं पता, उस कंट्री में जो वहाँ के लोग हैं वो हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी स्टेबल कॉइन्स में जो कि जिनकी वैल्यू बहुत स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू द अदर, as compared to their currency. As you already know that dollar is one of the क्या, it is the most powerful currency in the world. So ऐसे ऐसे डॉलर में इन्वेस्ट करना, हालांकि अब बेस्ड ऑन द कंट्री परस्पेक्टिव दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करो। बट आप देख सकते हो कि इट इज द पर्सन डिसीजन। तो यही डिफाई का एक आपका जो है कोर वो है कि ये किसी के लिए परमिशन के ऊपर वो नहीं है, इट इज परमिशनलेस। So any person who wants to purchase anything or invest in the foreign currencies as well, तो जो ऐसी हाईली इन्फ्लेशन वाली कंट्रीज हैं वो इस स्टेबल कॉइन में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो स्टेबल कॉइन, और ये इसलिए क्यों स्टेबल होता है, इन वन लाइन वी कैन आंसर दिस, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज, वी कैन से इट इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर और सम अदर एंटिटीज। सो ये होता है स्टेबल कॉइन। अच्छा, यील्ड फार्मिंग और स्टेकिंग। तो यहाँ पर जैसे जनरली करेंसीज बैक्ड बाय गोल्ड होती हैं, सीन की एग्जांपल्स जनरली जो करेंसीज हैं बैक्ड बाय गोल्ड हैं। बट यहाँ पर और अगर हम अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो कुछ करेंसीज सिर्फ स्पेकुलेशन बेसिस पे बढ़ घट रही हैं, कुछ करेंसीज अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट की टेक्निकल टेक्निकल वैल्यूज की वजह से उनकी वैल्यू घट बढ़ रही है। बट जो स्टेबल कॉइन्स हैं दैट आर आल्सो बैक्ड बाय द like Utkarsh already told, dollar like USDT or euro, it can be backed by the euro as well. Like, so if any stable coin is coming into the market, blockchain market, and backed by the fiat currency, then the price of that particular crypto currency will be near about that fiat currency. So वहां पर रिस्क नहीं है। और बिकॉज आप नॉर्मल यूएस डॉलर से या रुपी से या किसी पर्टिकुलर कंट्री से तो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में आकर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो आपके पास कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पर ही बनी हुई हो और ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करती हो, लाइक इम्यूटेबल हो, सिक्योर हो, ट्रांसफरेबल हो। सो एवरी लाइक characteristic should be fulfilled by that particular coin. So what is happening, you are just creating a currency from the main currency and which is tradable or usable into the blockchain world, and that is if it is backed by the real world currency then it is a stable coin. करेक्ट। तो अभी जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इट इज परमिशनलेस, ट्रस्टलेस, ठीक है, आपको किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूशन कैसे परमिशनलेस है, इन सब का बहुत सारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। लाइक वी वर डिस्कसिंग, लाइक आपने वेनेजुएला के बारे में अभी सुना होगा, और इफ यू आर अवेयर अबाउट द लिटिल बिट अबाउट द करंट अफेयर्स, एज यू हैव सीन दैट हाउ यूएसए हैज कैप्चर्ड देयर
prime minister, and they have taken over their control over their oil refineries and everything. So there is also a very interesting fact, like वेनेजुएला के पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, और वेनेजुएला ने बहुत सारा अपना जो एसेट है उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर करके रखा हुआ है, लाइक जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि यूएसए ने पूरा कंट्रोल ले लिया उनकी कंट्री के ऊपर, सारी ऑयल रिफाइनरीज और सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल ले लिया, बट स्टिल दे आर अनेबल टू टेक द कंट्रोल ओवर द एसेट विच इज स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। जो भी क्रिप्टो करेंसीज या जो भी एसेट, जो भी क्रिप्टो करेंसीज या जो भी उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उस पार्ट को यूएसए कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या उस पार्ट, क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है उसके प्राइवेट कीज का, या उनके पास एक्सेस, उनके जो भी उनके सारी चीजें हैं उनका एक्सेस वो ले ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज वेरी हाईली सिक्योर्ड। और ऐसा भी नहीं कर सकता यूएसए कि अपने डेवलपर्स को बोल के इस टेक्नोलॉजी को हैक करके उनको कुछ कर ले। लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अनहैकेबल, एंड व्हाट आई मीन बाय So अनहैकेबल इज it's वी विल, like just an example. We are like यस, trying to, with the help of this narrative, we are trying to give you the idea that this is not something कि गवर्नमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं या कुछ वॉर सिचुएशंस चल रही हैं या इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो आप अपना मनी जो है या आप अपने फिजिकल रिसोर्सेज, तो यू माइट वन टाइम देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप इन्फ्लेमेशन की वजह से करेंसी बहुत डिग्रेड हो जाए, या आपके फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं उन पे वॉर की वजह से कोई अटैक हो, कोई उनको हार्म पहुंचे या कोई उन पे कब्जा कर ले। बट अगर यू आर लाइक कीपिंग योर मनी इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम which is safeguarded with the private keys, you have your own wallets, you have your own hard wallets, cold wallets, where your currencies is safe and can be managed by you only, then there is a very less possibility that someone can take the control on your assets. करेक्ट। This is just और an example. Like we are not like any political angle, and we are not getting into that. Like we are just using this as an example to give you a narrative here. yes, so this was, as Varun has already told, so this was just an example how this blockchain technology is highly secure, like no one can take over your control over your asset. So this was overall picture of this DeFi. So there are some applications, like as we have told that it is $1 billion industry. So कुछ multiple platforms है, like Uniswap है, Aave है, Compound है, PancakeSwap है। ये सब क्या है, ये सारे applications है जो इस DeFi application के ऊपर build है। तो इसके बारे में ही हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, लाइक दीस आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो डिफाई टेक्नोलॉजीज है उस पर बेस्ड कुछ प्लेटफॉर्म्स है। इसका भी हम कुछ ओवरव्यू अभी हम इसमें अपने देख लेते हैं कि यूनिसॉप है क्या और कैसा वो दिखता है, लाइक व्हाट आर द एप्लीकेशन। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट आई विल शेयर रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज द यूनिसॉप, यू कैन से दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द यूनिसॉप। लाइक आप इस पे जाके भी आप देख सकते हो, और अगर आप डीफाई में मतलब आप एंटर करने की सोच रहे हो, so before entering into the DeFi part or before direct jumping into the coding part, I will recommend you to go through this platform and become familiar with all these terms, like what is this swapping, what is limit order. So आप देख सकते हो जो यूनिस्वैप है ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे आप आके जो भी वो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज है लाइक जेरोदा या ग्रो पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी आके आप बिल्कुल हर चीजें देख सकते हो कि आप वो यूएसडीटी है उसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो, प्राइस $1 के इक्वल है। यहाँ पे कुछ और भी है, यूएसडी ये है, यूएसडी कॉइन है, ईथर यूएसडी है, इथेरियम है। ये मल्टीपल कॉइन्स है जो इस पे लिस्टेड है, आप देख सकते हो इन सब की कुछ रियल, कुछ इसमें से स्टेबल कॉइन्स है और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जो इस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। अब ये यूनिसॉप है क्या? एक यूनिसॉप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही है जो पूरे इस डिफाई एप्लीकेशन पे जो मल्टीपल स्वैपिंग के लाइक स्वैप है, यील्ड जनरेशन है, इन सारी चीजों को वो कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करके आपको प्रेजेंट करता है। तो यूनिस्वैप से भी रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लाइक ये यूएसए की कंपनी है यूनिस्वैप भी, तो इसको भी यूएसए ने कुछ कंट्रीज में बैन कर दिया था, लाइक कुछ सैंक्शंस के बाद रीजन पे, वी विल नॉट गो मच इनटू दैट पार्ट, बट उन्होंने बैन कर दिया था। स्टिल एज वी हैव डिस्कस्ड द एप्लीकेशन की इट इज परमिशनलेस, इट इज डिसेंट्रलाइज। सो स्टिल जो कुछ लोग वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, तो हमने फिर आपके मन में एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक और आ सकता है कि भाई अभी तो आपने बोला कि ये डिसेंट्रलाइज है, इट इज परमिशनलेस है, तो यूएसए ने इसको बैन कैसे किया? सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि उन्होंने ना इसका सिर्फ जो फ्रंट एंड है वो कुछ
कंट्री में बैन कर दिया था, इसकी आईपी को बैन कर दिया था। इसीलिए जो वहाँ पे उस कंट्री के सिटीजन थे वो इसके फ्रंट एंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। स्टिल द ब्लॉकचेन पार्ट एज इट इज ऑन द पब्लिक ब्लॉकचेन इथेरियम, स्टिल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन एक्सेस इट थ्रू देयर फ्रंट एंड। उन्होंने अपना एक फ्रंट एंड बनाया और जो ब्लॉकचेन रिलेटेड पार्ट था इथेरियम पे उसको एक्सेस कर पा रहे थे। सो this is how we can this is the example beautifully explains how this technology is completely permissionless. Like finance is the right of everyone, so you cannot restrict anyone from this. तो उसी फंडामेंटल पे जो बेस्ड ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का पूरा एक कह सकते हैं पूरा एक जो इसका है एक कॉन्सेप्ट, उस पे ये कितना सही से मतलब बेस्ड भी है कि अगर कोई कंट्री चाहे भी इसको बैन करना तो वो सिर्फ उसका उन्हें बस फ्रंट एंड ही बैन कर पाए। लाइक स्टिल पीपल आर एबल टू एक्सेस दिस प्रोटोकॉल एज इट इज होस्टेड ऑन द पब्लिक ब्लॉकचेन। तो ये ओवरऑल पिक्चर है जो हमने जो सारी बातें बोली हैं कि डिसेंट्रलाइज है, परमिशनलेस है, तो वो कैसे डिसेंट्रलाइज, और उसने इसमें पास्ट में को प्रूव भी किया हुआ है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये परमिशनलेस है, कैसे ये डिसेंट्रलाइज है। सो दिस इज और यूनिस्वैप इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, देयर आर मल्टीपल मोर प्लेटफॉर्म लाइक यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, कंपाउंड, आवे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा यील्ड जनरेशन का। यील्ड क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे भी आप अपने टोकन्स को इन पूल्स में आके डिपॉजिट कर सकते हो and you get interest of that. Now, we will not go much into the calculation and other part, but when we will come with a more deeper course on this, we will explain you from the mathematics point of view, and it is very interesting that आपको मतलब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने तो अपने पूल में पैसे डिपॉजिट कर दिए, मुझे इंटरेस्ट मिल कैसे रहा है? सो देयर आर मल्टीपल things which run in the backend. There are multiple concepts which you need to understand that run in the backend part to completely understand the DeFi picture. And also the goal of this webinar was to give you the overall picture कि DeFi है क्या, DeFi और CeFi में differences क्या है, CeFi के क्या limitations हैं जिनको DeFi solve करता है, and we just don't want to give you the glimpse like decentralization होता है, permissionless होता है, trustless होता है. The goal of this webinar was to make you understand through real world examples what we mean by decentralization and how it is achieved, and how in the past it is also evident that what we are talking is completely achievable. So अब आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बनते कैसे हैं, कोडिंग कैसे होती है, किस तरह आप इन प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे एक सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं. सो दिस मल्टीपल क्वेश्चंस जो भी हैं, इन सारे पार्ट्स का डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हमारा एक डिटेल्ड कोर्स आएगा इसके ऊपर. तो आपको और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि भाई ये डीफाई की चीजें जो हमने बातें कर ली अच्छी अच्छी की एडवांटेजेस और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जरूरी है, क्यों पीपल अराउंड द ग्लोब है इसके तरफ जा रहे हैं, इस चीज को आप खुद से कैसे अचीव कर सकते हो, आप खुद से अपना एक प्रोटोकॉल कैसे डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीजें हम अपने डिटेल्ड कोर्स में सीखेंगे जो हम नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का. सो ये ओवरऑल एक पिक्चर था डीफाई का, जहां हमने डीफाई को बिल्कुल अंडर बेसिक से समझा कि डीफाई का वर्ल्ड का मीनिंग क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कैसे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, हमने सारी पिक्चर अब समझ ली है. सो दिस वाज ओवरऑल agenda of this webinar was. So I think Varun, we have explained all the topics. If anything Okay, right. left. So here we can see like कोई बैंक नहीं है, कोई फाइनेंशियल एंटिटी नहीं है, लेकिन all the banking functions like lending, अगर किसी को उधार लेना है, अगर किसी को उधार देना है, उस पे इंटरेस्ट लेना है, कोलेट्रल, अगर आपको कुछ कोलेट्रल बेसिस पे लोन्स देने हैं, और अगर आपको इंश्योरेंस करवानी है, like without having any financial entity into the picture, whole financial systems are working, and these systems are just based on the software, like just based on the smart contracts, where everything is like automatic, like everything is rule based, and whenever that condition is getting met, then the suppose 8% इंटरेस्ट अगर आपको देना है आफ्टर अ मंथ, तो ऑटोमेटिकली वो 8% इंटरेस्ट जो है वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट ट्रांसफर हो रहा है. समवन इज गिविंग द लोन, समवन इज एंटरिंग their coins into the liquidity pool so that someone can take the loans from that, and like every financial function is happening in this decentralized finance world without any financial entity, without any intermediary in between, without delay,
without corruption, without fraud, and like the whole system is running. And one more thing, like governance is also there. Like there is a governance mechanism is also there, voting mechanism is also there, but everything is running uh, autonomously with the help of the smart contracts and with the help of the softwares only. No intermediate identity in between. So that is the beauty of decentralized finance world, where decentralized applications are being run, and uh, people are taking part into these financial applications from all across the world, and like using these financial ecosystems. Correct. So this was the So, overall. Yes, yes. okay, Please okay. continue. Yes, Utkarsh, do you have Yeah. anything else? Yes, Yes. yes, Varun, as you mentioned that there is no intermediaries, still everything is running flawlessly and everything is running securely on this blockchain. So this is completely achieved just with the help of this blockchain technology. So आप सोचिए मतलब कि पूरा एक बैंक मतलब कितने कॉम्प्लेक्स उसमें सिस्टम होते हैं बैंक्स में आप सोच सकते हो कितने मैथमेटिकल्स उसमें पीछे बैकएंड में ऑपरेशन लाइक आपको ऐसे ओवर पिक्चर में ऐसा लग सकता है कि हमने तो मतलब पैसे दिए निकाले बट आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बैकएंड में कितनी सारी कैलकुलेशन और कितनी सारी चीजें बैकएंड में चलती हैं एक बैंक को रन करने में तो आप इस पूरे अब इतने सारे सर्वर को कितनी मतलब एंडलेस चीजें लगती हैं बैंक को चलाने के लिए उस टेक्नोलॉजी को इस पूरे एक इकोसिस्टम को अगर आप एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक डिसेंट्रलाइज वे में आप ले आ पा रहे हो या जहाँ पे आप उसको बिल्कुल किसी इंटरमीडिएटरीज जो कि बैंक है उससे पूरा इंडिपेंडेंट आप बना पा रहे हो इस पूरे इकोसिस्टम को तो कितनी पावरफुल वो टेक्नोलॉजी होगी आप सोच सकते हैं लाइक this DeFi and that also is just a one application of this blockchain which is DeFi. There are many more. So just see that कि blockchain टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है इस टेक्नोलॉजी का कितना एक कह सकते हैं कि इफेक्ट है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको चलाने के लिए इतने पैसे या इतना बड़ा इकोसिस्टम लगता है बैंक का उसको आप पूरा डिसेंट्रलाइज कर पा रहे हैं अगर आप उस टेक्नोलॉजी की मदद से तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है एंड as I mentioned earlier, this is just one of the application decentralized finance, and there are multiple more application which we can go deeper. As Varun mentioned, ये without any intermediaries, ये सारी intermediaries, ये सारी चीजें जो हैं हमारी चल रही हैं. So, And DeFi word is not for the developers, like hmm, someone who needs who is having a technical background, and who wants to make a career in blockchain development only. Then only he needs to know the DeFi word. It's not like that. Every individual, like who wants to understand the financial ecosystem, that can understand and learn DeFi ecosystem, and what you can, like we told you, that if someone is want to give the loan, he or she can give the loan in DeFi world, and when in the form of the, by putting their crypto into the liquidity pool, and they will get the uh, interest on while they are giving their uh, crypto or their coins into the liquidity pool. Someone is taking the loan, someone is taking the crypto, or someone is taking the currency, blockchain currency from someone, then he needs to pay the loan to someone. Like if insurance is correct. there, then it's a complete ecosystem, like banking Yes, yes, ecosystem, financial ecosystem. You can earn money as well, while hmm, doing the staking, while doing the lending, while doing the borrowing, while being a part of insurance. You can earn money as well in this ecosystem, or you can keep your correct, money safe over there, or you can handle your money independently by being the part of DeFi ecosystem. So it's correct. not for the technical people only, like Hmm, you, me, and any other person who wants to understand the DeFi. Like Uniswap is the application, financial application made on decentralized ecosystem. Same hmm, Aave is there, Uniswap is there. So you can also go and explore all these decentralized financial ecosystem, and you can become part of this financial ecosystem. You can invest in their ecosystem. You can earn from their ecosystem. You can understand that this global ecosystem.
So it's not like that some technical person has to be the part of this DeFi ecosystem. Our Correct. normal people who are not into the blockchain as a technology, they can also understand, learn, and adopt this upcoming financial ecosystem. And Varun, we can also say that it just not only replaced the centralized finance system, it has taken it to the next level as well. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल बस यहाँ पे देख के मैं इसको वो करूंगा कि आपने फ्लैश लोन्स के बारे में भी सुना होगा. लाइक कैन यू इमेजिन यू कैन टेक द लोन फ्रॉम द सेंट्रलाइज बैंक, जो आपके एरिया में आपके बैंक है, क्या आप उनसे 10 मिनट के लिए कोई लोन लेके उनको ऐसे रीपे कर सकते हो? क्या मतलब आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हो कि मैं किसी बैंक के पास जाऊंगा और उनसे 2 मिनट के लिए एक लोन लेके आता हूँ, फिर उनको 2 मिनट बाद रीपे कर दूंगा? Like you cannot even imagine कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. But in decentralized finance system, this is also possible. There is a term which is known as flash loan. The agenda of explaining this flash loan is just to explain there are many more terms and many more advantages of decentralized finance over this decentralized finance. The flash loan is just one of the example कि आप इस यहाँ पे आके आप इन pools से कुछ अमाउंट ऑफ जितना भी आपका अमाउंट है, आप कुछ सेकंड्स के लिए भी आप लोन ले सकते हो. लाइक अब आप पूछ सकते हो कि कुछ सेकंड के लिए लोन लेके मेरा फायदा क्या होगा. उसके भी कुछ एप्लीकेशन है. आपको किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे किसी करेंसी किसी टोकन की वैल्यू ज्यादा है, किसी पे कम है, तो आप इन पूल से आके कुछ सेकंड के लिए फ्लैश लोन लेके आप प्रॉफिट अर्न करके तुरंत ही उसको फिर लोन को आप वापस कर सकते हो. सो आप मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि आप यहाँ पे आप 1-2 सेकंड के लिए भी लोन ले सकते हो. और ऐसा भी नहीं कि आप लोन लेके भाग सकते हो. वो भी कोड में परफेक्टली क्राफ्टेड या परफेक्टली एल्गोरिदम या कोड में वो इस तरह से लिखा गया है कि कोई लोन लेके भाग भी नहीं सकता. यहाँ पे आपने अगर लोन लिया तो यू हैव टू रीपे इट, अदरवाइज द होल ट्रांजेक्शन कैन रिवर्ट एज वेल. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, there are plenty of example which you can we can say which we can give you to make you understand the real power of DeFi, and flash loan which I have just explained is one of them. So yes, right. So this was So overall yes, about. so objective of this webinar, like to make anyone understand about the DeFi world, how it is different from CeFi world, what kind of opportunities available, how the functioning of the financial activities are different from CeFi world in DeFi world, what are the advantages, what are the disadvantages, so that you can take your next steps in exploring the DeFi world, whether you belong to a technical world where you want to become a blockchain DeFi developer, you want to develop DeFi applications, or you just want to understand and learn DeFi ecosystem, and you want to just become an user of a DeFi ecosystem so that you can keep your money safe, keep your money secure, or keep the control of your funds independently without any centralized party, and you can like earn the money as well. So this is just an education webinar. We are not like here to give you the financial advisory, or we are not here to give you the advice that you should use Uniswap, you should use Aave. We are just here to open your mindset and make you more aware that what is happening in this blockchain world, and what are the immense possibilities exist in this world, which you can you can aware and you can adopt now. Correct. And anyone in the live also, if you are watching, and anyone if you are watching this on the YouTube, if you find this interesting और आपको लगता है कि इसमें तो मुझे अभी और डीप डीप डाउन जाना है, बिकॉज अभी जो हमने बातें की वो सिर्फ एक तरह से ऊपर ऊपर की बातें थी. आपने को एक्सप्लेन किया, हमने टेक्निकली बहुत चीजें आपको बताई, बट हाउ टू अचीव दिस, लाइक हाउ टू बिल्ड समथिंग ऑन द डीफाई, लाइक इसमें डीप डाउन जाना चाहते हो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस 1 hour or 2 hour webinar. So we are coming up with our course as well. We can say blockchain technical bootcamp, where we will not just talk about the DeFi, where we not just talk about only DeFi, we will talk about the other topics. Not just मतलब सिर्फ बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम सच में एक DeFi एप्लीकेशन बना रहे होंगे. लाइक जो भी हमने बातें की, लेंडिंग, बोरोइंग, यूनिस्वैप, या यूनिस्वैप को और डीप डाउन अंदर से उसके एक एक कंपोनेंट को समझना कैसे वर्क करता है. अपना अगर आपको कल को अपना कुछ एक DeFi प्लेटफॉर्म या DeFi कुछ भी प्रोटोकॉल बनाना है, तो उसको कैसे करते हैं, बहुत सारी उसमें मल्टीपल चीजें हैं.
so which cannot be explained in this 1 or 2 hour webinar. That can be achieved through a complete technical bootcamp or a session. So we are planning to launch it soon in the upcoming month. So if you find this interesting, the link will be provided to you of this upcoming course. Register it, and we will reach out to you and share the more details about this course. Most probably, we will launch this in the next month. We are planning to launch it next month. So the main objective, and we can say the main agenda of this course, like as we have discussed, the main agenda of this webinar was to give you the glimpse or give you the understanding of what is the DeFi and blockchain. But through this course, our agenda is not only to give you the introduction or not just talk about these applications. We will be building, we will be building these applications. We will be building on the DeFi and other applications of the blockchain technology with you. So if you find this interesting, and if you think that you can also build or contribute into this ecosystem, this course is for you. We will provide you the link of this course. You can register here, and we can reach out to you, and we can explore this field more deeper in a more detailed way. So this was the overall webinar. Thank you, Varun. If you want to say anything more. No, I just want to add one last point here. Like, we as a DigiChain pioneer, we are not a blockchain education company. We are working on real world use cases development. We are coming as an opportunity to anyone who want to understand the blockchain world, who want to become the part of the future technology. So we are just providing the opportunity, like we can provide the, we are making you aware with the help of this webinar series. And after that, if you need to go deep down, we have a training. We can provide you the deep down training on blockchain development. If you want to work on live use cases and live projects on blockchain, the opportunity is available with us. If you want to do your internship in blockchain, then that opportunity is also available with DigiChain Pioneer. If you want to make a career in blockchain world, then of course job opportunities are also available with DigiChain Pioneers. But we are like, you need to start your journey right with us. You need to become the part of our ecosystem. You need to be like part of our journey, and together, like as we already told you, that we are working on real world use cases. Like tokenization is the future in blockchain, which is a big infrastructural change which is coming in some time. So we are working and developing the products in tokenization, supply chain, digital identity. So there are immense opportunities available for everyone who want to learn and explore blockchain world with us. So that is like our we are here to provide the opportunity and work along in blockchain world. So if you have any query, if you want to become the part of our ecosystem, you can reach out to us, like by our website or like LinkedIn, like wherever the medium is available, you can reach out to us. We will help, support, and guide you. So this is just, we need to share it with you. And by this, like we can end this webinar. And good luck everyone for your future and for your career. Thank you. Thank you, everyone. So thank you. We can end here, I think, our webinar. Good luck everyone.